हाय शिवम। हाय सूरज सर, कैसे हाउ हो? आर यू? मैं बढ़िया, तू बता कैसा है? बहुत बढ़िया। सब बढ़िया चल रहा है। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, नहीं? आफ्टर द हाँ, इंटरव्यूज वेयर ओवर, इतने दिन के बाद मिल रहे हैं अपन, है ना? तो काफी टाइम। हाँ, सो वेलकम टू कैटवे इन द इनिशियल वे, है ना? माय प्लेजर। तो बच्चा एक बात बताओ, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ फर्स्ट। ओके, सो हाय गाइस, माय सेल्फ शिवम शर्मा। बैकग्राउंड बताता हूँ। सो इनिशियली आई एम फ्रॉम अ वेरी पुअर बैकग्राउंड, फ्रॉम अ tier 3 डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर. Did my BTech from NIT Rourkela, ceramic engineer, because mains में average rank and you got to choose sometime college over branch. Didn't want to go in ceramic, try किया कि MBA करते हैं. बीच में 2 साल का वर्क एक्स था, फाइनेंस बैकग्राउंड, फाइनेंस में वर्क किया, दिखा कि MBA इज अ की, कि अगर मुझे फाइनेंस में आगे बढ़ना है. So I started preparing for CAT after my first year of job. Scored decent percentile. Got calls from some of the good B schools. And then after a good 5-6 months of preparation with Catway, I got into FMS. Currently I'm a 2024 batch student at FMS, doing my MBA and doing good in my life. चलो सॉर्टेड। तो शिवम, व्हाट वाज योर परसेंटाइल लास्ट ईयर? Okay, so last year I scored 98.54 percentile. My best section was quant. I scored like 99.7 plus in quant, but I was not very good in DILR. Last year slot 2 LRDI was the toughest. One question was toughest. I got involved. I got stuck in that and waste my 20 minutes, and it costed me. So rest, I scored good in quant, so overall percentile was 98.54. I'm a EWS candidate, so got calls from Bangalore, IKL and FMS. Yeah, that was my next question कि which were the best calls that you got, है ना? तुम्हारी मेजर लर्निंग्स तुम्हारे फेलियर्स से और तुम्हारे अचीवमेंट से क्या रही? Okay, so first thing first, मेरा पहला इंटरव्यू बैंगलोर का था. 14th Feb. I remember the date correctly because everybody know 14th Feb is famous for, but 14th Feb is famous for. So I enrolled with Catway in December. Feb तक काफी कवर हो चुकी थी चीजें, but I think I was a little overconfident at that time. Bangalore में they asked for your profile, they ask for a letter of recommendations, and then your what they said, your 600-800 words, tell me about yourself or something about your profile. They ask SOP statement. SOP, yes, your statement of, I was not remembering the word correctly. So in that statement of purpose, I mentioned like most of about my work because Bangalore is work-ex oriented, so I put it all there, and I used some jargons in there, like regression analysis was there, and I have worked with Excel, so I put like I am good at making pivot tables and all. But I didn't go through with every jargon, or didn't knew the meaning of every jargon, didn't know exactly what I have put it in there. And my interview started, and then they asked me what is regression, and I was like blank. Then they asked me, okay, you worked with Excel, what are pivot tables? I was like blank, and those 2 questions just kill my interview there. Kill my interview or my chance in Bangalore. I really had a very good shot at Bangalore, but because of my overconfidence, I fucked that up. And मेरे को याद है rest तू is इन बेंगलोर के इंटरव्यू के बाद आके कॉल भी किया था ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? yes, मैं किया था, and I was very much confused because ending बहुत अच्छी गई थी. इंटरेस्ट में मैंने पोकर बोला था, एंड दे आस्क्ड मी सम क्वेश्चंस अबाउट पोकर, लाइक व्हाट आर द बेस्ट स्ट्रेटजीज एंड ऑल. दे वर वेरी impressed with my answers, so I was confused. वहीं से मेरे को याद है कि तू बोला था व्हाट वाज द बेस्ट थिंग इन पोकर, तो पोकर फेस, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, yeah, it's the poker face. I answered that. So मैं कंफ्यूज था कि पहला पार्ट, लाइक पहले 1 मिनट बहुत बेकार था, एंड एंडिंग का अच्छा गया, because these two are the most important thing in any interview, the first phase and the last phase, first 5 minutes or last 5 minutes. So उसको लेकर कंफ्यूज था, but unfortunately Bangalore convert नहीं हुआ. But okay, after that I had some really good shots. लखनऊ का इंटरव्यू बहुत अच्छा गया. Then Indore, because then again I contacted Suraj Bhaiya, Bhalendu and Kamlendu, and asked them for some advices. Started with my SOP again, my introduction again, everything and all. And then that confidence level, I keep that confidence level down, and all of the interviews went very good. Even though in Indore I was the second ranker in EWS category, I converted that in general. I was really happy about that. Apart from that, I converted
The FMS was my best convert because I wanted to, you know, choose FM. Yeah, after ABC, I wanted to choose FMS because of ROI reason. Everybody knows that. Exactly. If you want, I can share my FMS experience, or if you want, I can share it after maybe in some other interviews. कि FMS में कैसा रहा तुम्हारा, ये कैसा रहा, एक brief में. Okay, so FMS यूजुअली सबसे लास्ट में लेता है इंटरव्यूज, वो भी अप्रैल में लिया था. रिजल्ट सबसे पहले आता है, इंटरव्यूज का सबसे लास्ट में होता है अप्रैल में, जब तक मेरे सारे इंटरव्यूज हो चुके थे. और वो इकलौता ऑफलाइन इंटरव्यूज था. मैं खुश था बिकॉज आई थिंक आई एम द पर्सन हु विल बी एबल टू मेक गुड फेस व्हाइल सिटिंग इन द ऑफलाइन इंटरव्यू. मेरे एक्सप्रेशंस में अच्छे से एक्सप्रेस कर पाऊंगा एक ऑफलाइन इंटरव्यू में कंपेयर टू ऑनलाइन. आपको बहुत सारी चीजें नहीं पता लगती, बहुत सारे फैक्टर्स आपके फेवर में नहीं होते. लाइटिंग आपके फेवर में नहीं है, बेसिक सी चीज है, या इंटरनेट आपके फेवर में नहीं होता कई बार. ओके, सो ऑफलाइन इंटरव्यू था, जैसा कि कैटवे ने बताया भी था और दिख भी रहा था. 290 सीट के लिए उन्होंने 2900 इंटरव्यू लेने थे 4 दिन के अंदर. बेटा आपको 15 मिनट से ऊपर नहीं मिलने वाला, ये आप सब जानते हो. उन 15 मिनट में आपको उसे इम्प्रेस करना है. 1 मिनट का उनका होता है ना एक्सटेम्परी. ओके, एक्सटेम्पर, और वो रैंडम टॉपिक फेंकेंगे वहीं के वहीं तुम्हें उठा के. मैं गया देन उन्होंने इंट्रोड्यूस टेल मी अबाउट योरसेल्फ इंट्रोड्यूस करने को बोला. मैंने स्पोर्ट्स की बात की अपने इंट्रोडक्शन, देन दे से ओके योर एक्सटेम्परी स्पोर्ट्स पर्सन, एंड देन मैं 1 मिनट शुरू हो गया. और जितना मैंने, कमलेंदु भैया ने स्पेशली मुझे बोला था कि तू बोलता चले जाइयो, उन्हें चुप कराने को बोलियो कि वो जब बोलते चुप हो जाए, खुद से चुप मत होइयो, एक्सटेम्परी यही है. एंड देन मैं बोलता गया स्पोर्ट्स पर्सन. टॉपिक काफी कॉमन था, तो मैं कबड्डी को कब क्रिकेट में ले गया, कब ओलंपिक में ले गया, मुझे नहीं पता, बस वो बोलता चला गया. एंड देन उन्होंने सारे क्वेश्चंस उनके पहले स्पोर्ट्स पे गिरे. ओके, कि सबसे बेस्ट स्पोर्ट्स को इंडिया सबसे अच्छा परफॉर्म किसमें करती है ना, बोला कबड्डी. देन अबाउट क्रिकेट, देन अबाउट ओलंपिक कहाँ हुआ, 2008 के ओलंपिक में कौन गोल्ड मेडल जीता. You should know everything if you are putting some topic. Exactly. Okay, तो ये चीजें अच्छी जाने लगी. Then they asked me कि इंडिया का कोई नेशनल स्पोर्ट्स क्यों नहीं है, क्वेश्चंस लाइक दैट. ओके, वो शुरू के मिनट में मैंने इम्प्रेस कर दिया था, आई थिंक इनफ. एंड देन दे आस्क्ड मी कि तेरा इंटरेस्ट कहाँ है. देन मैंने बताया. दे आस्क्ड मी व्हाई यू वांटेड टू जॉइन एफएमएस. देन आरओआई वाली चीज आप पुट नहीं कर सकते. देन आई सेड कि बेस्ट एलम्स है, ड्यू का पार्ट है. एंड देन मैंने उन्हें बताया कि यू नो मेरा वर्क एक्स एवरेज है, तो यहाँ पे फ्रेशर्स क्योंकि ज्यादा आते हैं, तो मैं एक अलग सी प्रोफाइल लेके आऊंगा. टॉप 50% में वैसे ही हो गया, तो अगर फ्यूचर के हिसाब से देखा जाए मैं अच्छा फ्यूचर बना पाऊंगा. यू नो, यू शुड हैव गुड रीजन टू बैक योर स्टेटमेंट. और आरओआई तुम वहां पुट नहीं कर सकते. दे नो कि आरओआई के लिए एफएमएस बेस्ट है. एंड दे आस्क्ड मी बेस्ट कॉल कौन सी है. आई एम बैंगलोर, आई सेड. एंड दे आस्क्ड मी कि तू बैंगलोर ही जाएगा. नहीं, मैंने बोला नहीं, मैं एफएमएस जाऊंगा, जबकि मुझे भी पता है कि मैं बैंगलोर जाऊंगा. तब तक बैंगलोर का रिजल्ट आया नहीं था. बट ठीक है, वो ऑल इन ऑल डिफेंड करना आना चाहिए इफ यू आर सेइंग समथिंग. एंड इंटरव्यू बहुत अच्छा गया. आई थिंक मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा गया था. मैं बाहर आया, देखता हूँ तभी बैंगलोर का रिजल्ट आ गया. आई वाज नॉट सिलेक्टेड. सैड, आई वाज रियली सैड ऑन दैट डे. बट 2 दिन बाद ही एफएमएस का रिजल्ट आ गया. मैं ट्रेन में था, घर वापस जा रहा था, 2 दिन दोस्त के यहाँ रुका था. एंड देन पहली लिस्ट में नाम था. आई वाज वेरी हैप्पी. I remember that. You called me out at that point of time. तो एक ट्रेन की 3 घंटे की जर्नी थी, उसमें सबको कॉल कर दिया मैंने. भैया अभी ट्रेन में हूँ, बाद में करूंगा, बट एफएमएस मेरा कन्वर्ट है, सॉर्टेड है अब, है ना. तो आई रिमेम्बर. तो एक चीज बता कि व्हाट आर द मेजर लर्निंग्स दैट जूनियर शुड टेक फ्रॉम योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस, एंड हाउ शुड दे फ्रेम देयर व्हाई इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड व्हाई एमबीए क्वेश्चंस. ओके, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आई थिंक, बिकॉज जैसा मैंने बोला, ये क्वेश्चंस आपके शुरू के 5 मिनट में गिर जाते हैं, और वो 5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है बिल्डअप के लिए भी और फकअप के लिए भी. बैंगलोर में मैं फकअप किया, और आई थिंक और इंटरव्यूज में मैंने वो बिल्डअप दिया है अच्छा. तो वाई इंट्रोड्यूस में एक तो आपको बहुत क्लियर होना है. ट्राई टू मेक योर आंसर इन लाइक 30 सेकंड, 45 सेकंड मैक्स. 1 मिनट तक जाने ना दो. ये जब आप कोई अच्छा बी स्कूल ज्वाइन करेंगे, वहां पे भी आपको सिखाएंगे कि कंपनी को इंट्रोड्यूस करो, तो भी 1 मिनट जाने ना दो, बिकॉज इंटरेस्ट खो जाता है. अपने की पॉइंट्स बताओ कि ये बीटेक है, ये मेरा घर है, ये मेरा 10th 12th, शायद अगर आप फ्रेशर और 10th 12th इंक्लूड करो, मैं तो कहता हूँ वर्क एक्स है, क्योंकि वो एक्सप्लेन करना है. 10th 12th रहने दो. अपना घर बताया, देन अपना ग्रेजुएशन बताया, ग्रेजुएशन में कुछ मेजर किया, कुछ भी अच्छी अचीवमेंट वो बताई. देन अपना वर्क एक्स एक्सप्लेन किया, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट हो जाता है. अगर आप 12 से 24 महीने से ऊपर का वर्क एक्स है, या 2 साल का वर्क एक्स है, तो वो एक्सप्लेन करने बैठ जाओ. फिर अपने अचीवमेंट्स बताओ, अपने इंटरेस्ट बताओ. ये आपका 45 सेकंड में खत्म हो जाना चाहिए. 10-10 सेकंड के 10-12 सेकंड के 4 पार्ट्स डिवाइड करके. क्योंकि जनरली अटेंशन स्पैन भी तो 30 to 47 सेकंड्स का ही रहता है इंसान का. आप बोल दो, और ऊपर से सारे इंटरव्यूज ऑनलाइन होने वाले हैं, वो कब इंटरेस्ट खोएंगे आपको नहीं पता चलेगा. उससे इंटरेस्टिंग रखना है.
एक चीज बता शिवम कि ये जो क्रोनोलॉजी है वो घर कहाँ है, शुरू से स्टार्ट करना चाहिए या रिवर्स क्रोनोलॉजी इज बेटर, कि अपना वर्क एक्सपीरियंस पहले बताया, फिर 10th 12th मतलब बीटेक बताया, फिर क्या करा, घर कहाँ है, लास्ट में हॉबी बताई, बेहतर चीज हाँ, तो क्या है तुम्हारे हिसाब से? मैं रिवर्स यूज किया हूँ, बिकॉज मेरे लिए मेरा वर्क एक्स बहुत इंपॉर्टेंट बहुत था। इंपॉर्टेंट, एग्जैक्टली। मैं क्योंकि उसी में प्रिपेयर था, मैं चाहता था पहले मेरे से आंसर उसी में पूछे, तो मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट था। किसी के लिए कुछ चीज इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कोई फ्रेशर है उसके लिए शायद उसका अंडरग्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने क्लब खोला, मैं एक फेस्ट का प्रेसिडेंट रहा, ऑल दीज थिंग, तो वो चीज पहले बता दो, क्योंकि आपके पास टाइम रहता है ना एक्सप्लेन करने का, तो डेफिनेटली रिवर्स अच्छा प्ले कर जाता है। कई बार यू आर फ्रॉम अ वेरी मे बी लाइक इफ आई से देयर इज अ कश्मीरी पर्सन, कश्मीर के बारे में काफी क्वेश्चंस बनते हैं किसी भी इंटरव्यू में, तो वो पुट आउट करना, लेकिन हाँ प्रिपेयर्ड रहना, वो पुट आउट करना, आपको पता है कि आप अपना पूरा इंटरव्यू उसके वे में घुमा सकते हो, तो ये चीजें छोटी छोटी हैं जो ध्यान रखनी है। अच्छा, तो as you mentioned, तो what do you think, how is the role of CATWA in your GDPI preparations? ओके, हाँ, ये लग रहा था क्वेश्चन आ रहा है। ओके। ये क्वेश्चन ना आए तो इंटरव्यू अधूरा है ना। बिल्कुल बिल्कुल। सो एक छोटी सी चीज बता रहा हूँ, मैंने लाइक फर्स्ट ईयर ऑफ वर्क एक्स मैंने तब भी कैट दिया था, आई स्कोर 96.24, उस टाइम पे इंदौर कन्वर्ट मारा था, लखनऊ मेरा वेट लिस्टेड था, और मैं बिना प्रिपरेशन के इंटरव्यूज दिया था, मुझे पता है मेरी प्रिपरेशन बहुत गंदी थी, आई थिंक वो ईडब्ल्यूएस कोटा 10th 12th मार्क्स अच्छे थे, तो इंदौर हो गया, इंटरव्यूज बहुत गंदे गए थे, और इस बार मुझे जाना था एमबीए, तो मुझे एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना था, एंड कैटवे टेलीग्राम में किसी ने रिकमेंड किया था एज आई रिमेम्बर, और मैंने ज्वाइन किया, बात की थी आप लोगों से, दैट वाज गुड। पहला इंटरव्यू दिया आप लोगों को बिना प्रिपरेशन के, हो भाई क्या गंदा इंटरव्यू था वो, मेरी लाइफ का आई थिंक वर्स्ट इंटरव्यू, खुद को रेटिंग भी नहीं दे सकता उस इंटरव्यू में आई थिंक। एंड देन क्लासेस होनी शुरू हुई, देर कमलेंदु भैया ने सारी जीके की क्लासेस ली, सूरज भैया पूरा बता रहे थे हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, वीरेंदु भैया छोटे छोटे डाउट्स भी ले रहे थे, एक वो वन ऑन वन इंटरेक्शन तीनों के साथ, क्योंकि ज्यादा बेस्ट रैंक नहीं है, ज्यादा आप लोग रखते भी नहीं हो, तो मुझे पूरी पर्सनल अटेंशन मिली, पूरा एक ग्रोथ दिखी मुझे अपने वो हर हफ्ते के इंटरव्यूज में, कि मैं हाँ धीरे 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 खुद को रेट कर पा रहा हूँ, और आई थिंक वो ये चीज सिर्फ यहीं तक नहीं, ये चीज मुझे मेरे समर प्लेसमेंट्स में भी हेल्प करी, क्योंकि ये टेल मी अबाउट योरसेल्फ, इंट्रोडक्शन, ये एचआर, ये हर जगह आने हैं, ये यहाँ की का नहीं है, सो मैं अभी बेस्ट थिंग भी अबाउट। स्टूडेंट्स को वही बोलता हूँ कि व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग समथिंग, ऐसा प्रिपेयर कर लो कि हमेशा के लिए वो रह जाए, ठीक है, इट्स द बिल्कुल बिल्कुल इनबिल्ट थिंग इन यू, राइट। अब इंट्रोडक्शन है तुम्हारा, तो ये तो तुमको कभी भी काम आएगा, समर्स ले लो, फाइनल्स ले लो, शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स, लाइव प्रोजेक्ट्स ले लो जो कॉलेजेस में आते कुछ हैं, भी कुछ भी कुछ भी, कुछ भी, आपको, ऑब्वियसली। आप 40 के हो, आप किसी भी कंपनी के इंटरव्यू में जा रहे हो, मैं सीईओ की पोजीशन के लिए जा रहे हो, आपको टेल मी अबाउट योरसेल्फ का आंसर वहां भी चाहिए, सही सो है, इट इज समथिंग इनग्रेव्ड होना चाहिए, तो एग्जैक्टली। है ना, ये सब लर्निंग आगे के लिए भी है, यहाँ के लिए तो है ही है, और बिकॉज बेस्ट कॉल्स के लिए बैठ रहे हो, और एक भी छूटा आपको बहुत दुख होता है, एग्जैक्टली। तो और यू वो भी शुड जो बी। ड्रीम कॉलेजेस है वो कन्वर्ट ना हो तो ऑब्वियसली लगता है कि यार इतना मेहनत करा, 1 साल का मेहनत था, फिर कन्वर्ट नहीं और हुआ, तो दिखता इट है ना कि अपने पास चांस था। एग्जैक्टली। बहुत लोग हैं जिनके पास चांसेस नहीं होते, लास्ट अटेम्प्ट होता है, बेस्ट कॉल्स आते हैं, कन्वर्ट नहीं हो तो डिसअपॉइंटमेंट बिल्कुल सबसे बिल्कुल ज्यादा होती है, दैट्स द बिल्कुल थिंग, बिल्कुल। है ना। तो हम्म। एक चीज और, कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि वेर यू सेटिस्फाइड एट द एंड, व्हाट प्रोसीजर्स डिड कैटवे फॉलो, ठीक है, तुम लोगों को ग्रूव करने में, इंप्रूव कराने में, तो वेर यू गाइस सेटिस्फाइड एट द एंड, जब तुम लोगों के रिजल्ट, ऑब्वियसली यू विल बी सेइंग यस, मतलब मैं अगर बताऊं तो एफएमएस कन्वर्ट है तो बोलोगे, बट इन जनरल पूछ रहा हूँ, है ना, कि मतलब ऐसा नहीं कि मतलब इन जनरल जो प्रोसीजर्स वी फॉलोड लास्ट ईयर, तो वेर यू गाइस सेटिस्फाइड विद दैट? मैं तो था, काफी था, मैं क्या मतलब, मेरे साथ सुंदरम एक एफएमएस में आया था साथ में कैटवे गई, उससे भी बात होती है इस बारे में, काफी सेटिस्फाइड आई थिंक सभी थे, मेरी प्रत्युष से बात होती थी उस टाइम पे, प्रत्युष आया, मैं अहमदाबाद निकाला, ईडब्ल्यूएस ही था वो भी, एंड हम सभी एक हम सबकी कन्वर्जेशंस बहुत अच्छी नहीं थी, वन ऑन वन, ऊपर से ऑनलाइन बैठ रहे कन्वर्जेशन करनी है कैट के इंटरव्यू में, वो सब बहुत बेकार था, तो आपको खुद एक ग्रोथ दिखती है ना, और वो छोटे स्पैन में दिखती है, 2-3 मंथ ही तो थे, एग्जैक्टली, तो हाँ। डेफिनेटली वो 2-3 मंथ में जब ग्रोथ दिखती है, आपको दिखता है कि आप पर्सनली बहुत ग्रो कर रहे हो, आंसर्स आपके इंप्रूव हो रहे हैं, प्रिसाइज हो रहे हैं, आपका जार्गन्स है, उनके मीनिंग्स भी हैं, समझा सकते हो, दिखता है, तो समझ में आता है कि हाँ एक चलो, सेटिस्फेक्शन है प्रोसेस का। थैंक यू सो मच, है ना। चलो, बिल्कुल। लास्ट क्वेश्चन मेरे तरफ से तुम्हारे लिए, कि एनी सक्सेस मंत्र फॉर द जूनियर्स?
अपार्ट हाँ, फ्रॉम बिल्कुल दिस है, व्हाई इंट्रोड्यूस योरसेल्फ वगैरह वगैरह, कोई और अदर सक्सेस मंत्र, ठीक है, बिल्कुल है। रिलेटेड टू ओके, फेलियर्स, अगर वो उनको किसी कॉलेज में डिसअपॉइंटमेंट मिलती है, उसके बाद उनके इंटरव्यूज होते हैं, तो हाउ दे शुड टैकल, क्या उनका स्ट्रेटजी होना चाहिए, सारी चीजें। देखो इसमें मैं यही कहूंगा ब्रो, कैट तो हो गया, या जो भी एग्जाम तुमने, वो एग्जाम तक हो गया, अब हो तुम इंटरव्यू फेज में। अगर कॉलेज तुम्हें कॉल दिया है, इसका मतलब तुम्हारे पास उतना ही चांस है जितना 100% टैलेंट के पास है वो कॉलेज फोड़ने का। कहीं से कहीं तक तुम कमी नहीं हो। वो तुम्हें कॉल इसलिए दिया मजाक करने के लिए, वो तुम्हारा इंटरव्यू टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपना इतना इंपॉर्टेंट, इसलिए नहीं कर रहे बिकॉज तुम्हें नहीं लेना है। Exactly. यही तुम्हारी अब बेस्ट चीज है जो तुम जिसमें इंप्रूव कर सकते हो। 10th नहीं सुधार सकते, 12th नहीं सुधार, कुछ नहीं सुधार सकता। अब यही है जहां तुम्हें अपना बेस्ट या वर्स्ट देना है। सही तो बात। कॉन्फिडेंस नहीं खोना। एक आई थिंक जितना मुंह से बोलते हो ना उतना एक्सप्रेशन से बोलते हो। ये हैंड मूवमेंट्स, ये चेहरे का बॉडी एक्सप्रेशन, पोस्चर, बॉडी हंसना, लैंग्वेज, हाँ। बिल्कुल ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत मैटर कर जाती है वो इंगेज रखने के लिए। ठीक है, तो ये सब चीजें ध्यान रखनी है। कॉन्फिडेंस इज द बेस्ट की आई थिंक, जो तुम्हें बचाएगी भी और डुबाएगी भी। वो एक लिमिट तक रहना है, उससे ऊपर भी जाना गलत है, नीचे भी जाना गलत है। ठीक है, और आई थिंक जितना अगर आप कैटवे में हो या किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में हो, डजेंट मैटर, जितना उन लोगों को सुनोगे ना, या जिन जो एक्सपीरियंस कर चुके हैं इंटरव्यूज का, जितना उनकी बातें सुनोगे, उनसे सीखोगे, उससे अच्छा कहीं नहीं सीख सकते, कहीं नहीं बिकॉज वो लोग उस प्रोसेस से जा चुके हैं, सही आप बात। जाने वाले हैं। तो वो जो बोलेंगे सही है, बाकी तो बेस्ट है Sorted. यार, फोड़ दोगे कोई दिक्कत नहीं है। सभी फोड़ हाँ, देते लेट्स हैं। होप फॉर द बेस्ट कि लास्ट ईयर के रिजल्ट्स को इस साल और इम्प्रूव करें, तुम लोगों के जूनियर्स को एफएमएस भेजते हैं, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, और ठीक है। एफएमएस आओगे, कोई भी तुम में से आता है, आई एम ऑलवेज देयर रेडी। किसी भी कॉलेज जाते हो यार, आई एम ऑन लिंक्डइन, व्हाट्सएप, जो भी तुम कांटेक्ट करो, आई वो विल तुम बी। नहीं भी बोलोगे तो भी हम इनको कांटेक्ट करा ही देंगे। है बिल्कुल ना। बिल्कुल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, चलो थैंक्स अलॉट शिवम यार, टाइम निकालने के लिए, है ना। बस मैं यही ओके चाह रहा ओके। था कि इन लोगों को एक ओवरव्यू मिल जाए कि कैसे इनको प्रिपेयर करना चाहिए, क्या करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अभी तुमको भी पता है साइनिकल एटीट्यूड होती है, क्या होगा कन्वर्ट नहीं होगा तो क्या होगा, कैसे होगा, चीजें टैकल कैसे होंगी, सारी चीजें। तो इसके लिए ये चीज बिल्कुल बहुत जरूरी थी, इसलिए मैंने तुमसे बोला भी था कि इफ यू हैव टाइम, और फॉर्चुनेटली तुम अभी फ्री भी थे, है ना। तो एंजॉय योर हॉलीडे, है ना। हाँ, एक और चीज और कहना चाहूंगा, बस हाँ, ये 2-3 महीने हैं, इनको अच्छे से कर जाओ। कोई यूटिलाइज करो। अपने आप से कोई आदमी झूठ नहीं बोलता। तुम्हें हम्म, पता है तुम्हारे पास कितना टाइम है, उसे दो। हम्म। वो 2-3 महीने दे दोगे ना ब्रो, ये जर्सी पहनता हूँ एफएमएस लोगों की, नहीं दिख रहा एंड है, नहीं दिख रहा है, लोगों नहीं दिखा। दिखेगी दिखेगी दिखेगा, अब दिखेगा। हाँ, अभी दिख सही रहा में है। बहुत बहुत प्राउड फील होता है। तो ये सही चीज बात। होगी। सो देख लो, 2-3 महीने की मेहनत कहीं पे भी लैंड अप कर सकती है तुम्हें। एग्जैक्टली। चलो थैंक्स अलॉट शिवम यार, थैंक्स फॉर दिस प्रेशियस टाइम, ठीक है ना। है ना। ओके ओके, हाँ, चलो बाय बाय। बाय बाय सर।